अभी मैं फ़िलहाल आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है तो फिर हम आपसे बात करेंगे। Last time we have discussed on chronic kidney disease, but because of rain, there was shortage of little bit time, so we are incomplete our topic. Today we will try to complete the remaining part of our chronic kidney disease topic. So just a quick review on CKD. It is a irreversible loss of renal functions for more than 3 months. Diabetes is number one cause, hypertension is the second one, and there are other causes of chronic kidney disease as well. There is chronic kidney disease divided into stages 1, 2, 3, 4, 5, depending on the glomerular filtration rate. And why it is divided, we have discussed it. There are so many risk factors for chronic kidney diseases. They all contribute to have a CKD. There are almost in every organ of the body is involved, and patient may have signs and symptoms of every system in the body because of uremia. For the diagnosis of chronic kidney disease, we have to go for renal functions like urea, creatinine, they are elevated, electrolytes, they are disturbed, serum calcium, phosphate, PTH, albumin, CBC, urine DR, we may find proteinuria or hematuria, and we will do ultrasound kidneys for its size, and in chronic kidney disease, its size is decreased. This is the formula for the estimation of glomerular filtration rate on the bedside of the patient, and it is a rough estimate that the creatinine level and the glomerular filtration rate. We have discussed proteinuria because it is the most important and second most important parameter for the evaluation of chronic kidney disease, because normal GFR with proteinuria is also called as chronic kidney disease. This is the complications of the chronic kidney disease and their mechanism, why this is happening, and when this is happening, the treatment of these complications as well. Here we were. यहाँ पे हमने stop किया था, so we will discuss in little detail from here with remaining slides. Now, why the kidney disease are being divided into the stages 1, 2, 3, 4, 5? This is because of to manage the kidney disease according chronic kidney disease according to its stage. स्टेज 1 और 2 वो स्टेज है जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, तो अमूमन ये पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि इनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। लेकिन अगर अब हमारे पास आ जाते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ किसी और तकलीफ़ की वजह से, और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है इनको। और स्टेज 1 अगर आपको मिले, यानी कि उसके यूरिन में प्रोटीन मिले फॉर मोर देन 3 मंथ्स, या हेमेचूरिया मिले, बेशक उसका जो GFR है वो नॉर्मल है या हाई है, तो हमने फिर डायग्नोस करना है और फिर ट्रीट करना है उस काज को, यानी प्रोटीनूरिया को इवेल्यूएट करना है, हेमेचूरिया को इवेल्यूएट करना है कि वो क्यों हो रही है, और फिर हमने इसको ट्रीटमेंट करनी है। या अगर पेशेंट का जो है, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, उसकी जो काजेज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको हमने डायग्नोस करना है और उनको ट्रीट करना है, और वो तमाम मैयर्स करने हैं जिससे कि वो उसकी जो प्रोग्रेशन है फ्रॉम स्टेज 1 to 2 तक पहुंचने के लिए उसको हम स्लो कर सकें। ठीक है, तो ये स्टेज 1 और 2 की हो गई। स्टेज 3 जब GFR मॉडरेटली डिक्रीज हो जाए, यानी कि 30 to 59 ml पर मिनट हो जाए, ये वो स्टेज है जब पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो हमारे पास आता है। तो जब इस स्टेज पे हमारे पास आए, यानी स्टेज 3 अगर हम देखें कि उसको है, फिर हमने उसकी कॉम्प्लिकेशंस को इवेल्युएट करना है और उसको ट्रीट करना है। अभी जो हमने डिस्कस की थी ना पिछली स्लाइड्स में, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो वो मेजर्स हमने करने हैं स्टेज 3 में।
अगर स्टेज 4 में पेशेंट हमारे पास आता है जिसमें सीवियरली डिक्रीज होता है GFR, यानी 15 to 29 ml होता है पर मिनट, फिर हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि नाउ यू नीड रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, सो वी हैव टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर दैट थेरापी। अगर स्टेज 5 में आए यानी किडनी फेलियर हो जाए और उसका जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाए, तो फिर हमने उसकी रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देनी है अगर उसको यूरीमिया की वजह से कोई सिम्टम्स होते हैं। ये अमूमन वो स्टेज होती है जब यूरेमिक सिम्टम्स बिकम्स मोर प्रोमिनेंट और पेशेंट इतना डिस्ट्रेस में या इतना तकलीफ में होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, आप मेरी रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी कर लें। तो ये स्टेजेस हैं और उसकी बुनियाद पर जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं और इसलिए ये स्टेजेस बनाई गई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम करके पेशेंट की जो प्रोग्रेशन है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए उसको प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। मीन्स थेरापीज फॉर स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। मतलब अगर स्टेज 1 में है तो हम वो मैयर्स लेके स्टेज 2 तक पहुंचने में उसको थोड़ा डिले करते हैं। पहुंच तो जाएगा लेकिन हम स्लो कर सकते हैं इस प्रोसेस को ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बेहतर रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रूवन है कि भाई ये करनी ही है तो ये पेशेंट को फ़ायदा देंगी, और कुछ अभी प्रिलिमिनरी एविडेंस है यानी कि अभी तक उसकी प्रूवन नहीं हुई है कि ये फ़ायदा देंगी या नहीं। कुछ को देती हैं, कुछ को नहीं देती। तो प्रूवन बेनिफिट में क्या है, शुगर पेशेंट की कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है और आप समझ रहे हैं कि उसको CKD है या 1 है या 2 है या 3, जो भी स्टेज है, उस स्टेज पे उस पेशेंट की शुगर को आपने टाइट कंट्रोल करेंगे तो वो अगली स्टेज में पहुंचने तक डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसको टाइट कंट्रोल करने का तरीका ये है कि एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। वो हमें ये बताती है कि पिछले 3 या 4 महीने की उसकी जो शुगर है वो कितनी कंट्रोल में थी, और उसकी बुनियाद पर हम फिर उसको मेजर्स लेते हैं, मेडिसिन देते हैं या कंट्रोल करते हैं ताकि वो जो HbA1c है वो नॉर्मल उस पर रहे रेंज में, और पेशेंट की जो प्रोग्रेशन है अगले स्टेज में वो स्लो हो जाए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा गोल ये है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 और 140 के दरमियान होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 80 और 90 के कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, या 80 से 90 के दरमियान होना चाहिए। प्रोटीनूरिया हमने अभी डिस्कस किया कि ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको इवेल्युएट करना है और इसको ट्रीट करना है ताकि पेशेंट की जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो सके, क्योंकि प्रोटीनूरिया इट्सेल्फ इज ए नेफ्रोटॉक्सिक। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये किडनी को डैमेज करता रहेगा और पेशेंट की जो स्टेज है वो वर्स होती जाएंगी। ठीक है, और उसको ट्रीट करने का या प्रोटीनूरिया को कम करने के लिए हमारे पास 2 मेडिसिन के ग्रुप अवेलेबल हैं। एक है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एक दूसरा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये 2 दवाइयों के जो ग्रुप हैं ये साबित शुदा है कि ये प्रोटीनूरिया को कम करते हैं, और प्रोटीनूरिया कम हो जाए तो आप उसकी प्रोग्रेशन कम कर देंगे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए। अच्छा, जिनके अभी प्रिलिमिनरी एविडेंस हैं यानी कि कंफर्म नहीं है कि ये साबित है नहीं है, कुछ को फ़ायदा हुआ है कुछ को नहीं हुआ है, उन मेजर्स में है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये भी जो है डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। स्पाइनोलेक्टोन इसमें आता है, प्लेरोनोन आता है इसमें। ये भी कहते हैं कि देने से पेशेंट को बेनिफिट मिला है, लेकिन कंफर्म नहीं है, कुछ को मिला है कुछ को बेनिफिट नहीं भी मिला है।
फिर हमने पेशेंट की डाइटरी मेजर्स को थोड़ा सा अल्टर्ड करना है। अगर प्रोटीन यूरिया है तो उसको हम लो प्रोटीन डाइट देंगे, लो साल्ट डाइट देंगे, वाटर इनटेक उसका कम रखेंगे, पेशेंट को यू वॉल्यूमिक रखेंगे। और पेशेंट की जो पोटेशियम की डाइट है, अगर हाइपरकैलेमिया है तो फिर हम उसकी वो पोटेशियम डाइट कम रखेंगे। अगर हाइपरफॉस्फेटेमिया है तो हाइपरफॉस वो डाइट जिसमें फास्फोरस ज़्यादा है वो डाइट भी हम उसकी कम कर देंगे, ताकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो वर्स ना हो और पेशेंट की जो प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज वो स्लो हो जाए। एक्सरसाइज बेनिफिट कहते हैं कि है मिलता है एक्सरसाइज से। और अगर ओबीस पेशेंट है उसको हम अगर एडवाइस करेंगे वेट लॉस करे तो वो भी उसको बेनिफिट दे सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन दे सकती है। अगर कोई पेशेंट स्मोकर है तो उसको कहेंगे कि स्मोकिंग स्टॉप कर दे, कि वो भी प्रोग्रेशन कराती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। तो स्मोकिंग सिसेशन से उसको बेनिफिट मिल सकता है। अगर पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लिपिड बढ़े हुए हैं या फास्फेट बढ़े हुए हैं, जो कि इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, और ये खुद भी प्रोग्रेस कराते हैं अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाए। तो अगर आपको ये चीज़ें मिलें तो आपने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है और कम करना है, यूरिक एसिड को, लिपिड्स को और फास्फेट को नॉर्मल लेवल पे रखना है, ताकि उसकी प्रोग्रेशन कम हो स्लो हो। और एसिड बेस बैलेंस, अगर पेशेंट एसिडोसिस में है तो फिर हमने उसको एसिडोसिस को ट्रीट करना है, और उससे भी पेशेंट को बेनिफिट मिला है कुछ को, के उनकी जो प्रोग्रेशन है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वो स्लो हो गई है, लेकिन कंफर्म नहीं है, कुछ को मिली है कुछ को नहीं भी मिला है बेनिफिट। तो ये चीज़ें भी प्रिलिमिनरी हैं, लेकिन जो प्रूवन है वो हमने ज़रूर करनी है ताकि उसकी प्रोग्रेशन स्लो हो सके। अब आते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी। ये क्या चीज़ है? ये दो टाइप्स की होती है रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, एक तो डायलिसिस है और एक किडनी ट्रांसप्लांट है। ठीक है, तो हमारे पास डायलिसिस होती है और किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है, हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस दो किस्म की होती हैं, एक हीमोडायलिसिस है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस ब्लड निकालते हैं पेशेंट का मशीन के ज़रिए, फिर उसको साफ़ करते हैं और फिर साफ़ शुदा ब्लड जो है वो वापस पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। पेरिटोनियल में ब्लड निकलता नहीं है, पेरिटोनियल कैविटी के ज़रिए हम उसकी डायलिसिस करते हैं। और हमारे पास जो है वो हीमोडायलिसिस होती है और पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं होती। डायलिसिस काम कैसे करती है? जब पेशेंट को रीनल फेलियर होता है तो हम डायलिसिस कराते हैं। तो डायलिसिस में होता क्या है? डायलिसिस क्या करती है? डायलिसिस वो काम करती है जो गुर्दे करते हैं, यानी in dialysis we remove waste products by the process of diffusion। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन ये है कि एक लॉ है जिसका मतलब है कि उसमें जो सॉल्यूट्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस के ज़रिए हम उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि गुर्दे रिमूव करते हैं वो डायलिसिस के ज़रिए रिमूव करते हैं। और जो साल्ट की कंसंट्रेशन अप डाउन हो जाती हैं, यानी सोडियम अगर बढ़ गया या तो कम हो जाएगा, कम हो गया तो बढ़ जाएगा, इस तरह से पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्ब है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, बहुत सारे साल्ट्स हैं जो अगर ज़्यादा हैं हमारे जिस्म में जमा हो गए हैं तो वो उसको निकाल देगा, और अगर कम हो गए हैं तो वो उसको रिप्लेस करेगा, उसको नॉर्मल लेवल पे रख देगा। जो वाटर किडनी रिमूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फेल्यूर, वो जब जमा हो जाता है हमारे बॉडी में तो वो हम एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी हम डायलिसिस के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो डायलिसिस में तीन चीज़ें होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं, साल्ट की करेक्शन हो जाती है, और जो फ्लूइड होता है बॉडी में एक्स्ट्रा वो हम निकालते हैं डायलिसिस के ज़रिए। तो डायलिसिस इस तरह से काम करता है रीनल फेल्यूर में। यह है डायलिसिस का प्रोसीजर। अगर हम पेशेंट जो लेटा हुआ है उसके हैंड पे रिस्ट के ऊपर देखेंगे तो एक सुर्ख रंग की नकीर नज़र आएगी, यहाँ से हम ब्लड निकालते हैं। ठीक है, फिर ये जाता है, अगर एक बॉक्स की तरह आपको नज़र आएगा जिसके अंदर रेड और येलो कलर के दो है पार्ट्स, उसमें से ये जो रेड है वो ब्लड है
और जो येलो कलर का आपको ऐसा नज़र आ रहा है वो डायलिसिस फ्लूइड है। यहाँ ये डायलिसिस ये जो कंटेनर जो बॉक्स आपको नज़र आता है इसको हम डायलाइज़र कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये मशीन के अंदर नहीं होता, ये मशीन के बाहर ही होता है। तो सारा जो प्रोसेस होता है अभी हमने डिस्कस किया, वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल, साल्ट की करेक्शन और फ्लूइड की एक्स्ट्रा फ्लूइड की रिमूवल, वो इस डायलाइज़र के ज़रिए होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। जो साल्ट ज़्यादा होते हैं वो निकल जाते हैं, जो कम होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, और जो क्लीन ब्लड होता है वो ऊपर आप देखें तो ऊपर वाला जो लाइन आपको नज़र आ रही है, वहाँ से क्लीन जो ब्लड है वो हम बॉडी के अंदर फिर दोबारा एंटर कर देते हैं। और जो एक्सचेंज होता है, जो येलो कलर का जो फ्लूइड है वो हम फिर डिस्कार्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली मशीन के जरिए। ये जो डायलिसिस फ्लूइड है इसको बनाने का एक तरीका है। ये डायलिसिस फ्लूइड एक मखसूस कंसंट्रेशन में बनता है, जिसमें सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, बाइकार्ब होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। ये तमाम नॉर्मल लेवल में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तो निकल ही आते हैं, लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनमें से ज़्यादा होता है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से निकल आता है, और अगर जो कम होता है वो फिर फ्लूइड से बॉडी ब्लड के अंदर चला जाता है, जो कि नॉर्मल उसके लेवल में आता है। फिर ये जो कि वेस्ट प्रोडक्ट वाला मटीरियल फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है थ्रू मशीन। ठीक है, इस पूरे सिस्टम जो वाटर बनाता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होते हैं। इन तमाम प्रोसेस को हम आरओ सिस्टम कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से उसमें हम फ्लूइड रखते हैं, फिर वो खुद ही कंसनट्रेट बना के डायलिसिस फ्लूइड बना देता है। तो ये है तमाम प्रोसीजर जिससे हम जिस तरह से हम डायलिसिस करते हैं पेशेंट की। डायलिसिस करने के लिए हमें पेशेंट का वेस्कुलर एक्सेस चाहिए। अगर वेस्कुलर एक्सेस नहीं होता तो फिर पेशेंट की डायलिसिस नहीं होती। कुछ दो तरह के वेस्कुलर एक्सेस हैं, एक परमानेंट होता है और एक टेम्पररी होता है। ये परमानेंट जो वेस्कुलर एक्सेस है वो कॉमन जो होता है वो एवी फिस्टुला या प्राइमरी एवी फिस्टुला कहते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, सेफेलिक वेन या रेडियल आर्टरी रिस्ट में की साइड पे होती हैं ये दोनों, उसको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो उसकी वेन है वो उसमें जो है वो फ्लो जो है वो बढ़ जाए उसका, और वो वेन जो है वो थिक कॉर्ड लाइक हो जाए, ताकि उसमें हम पंक्चर कर सकें नीडल को आराम से। आर्टरी से हम डायलिसिस नहीं कर सकते, हम हमेशा वेन से करते हैं। उसके लिए हमें अच्छी और बड़ी वेन चाहिए, और उसके अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो भी अच्छा होता है, ताकि उसकी डायलिसिस जो है वो सही तरीके से हो। दूसरी जो जगह है वो सेफेलिक वेन को ब्रेकियल आर्टरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वो आपको मिलेगी एल्बो की साइड पे, और ब्रेकियल में जो है वो अपर आर्म बेसिलिक ब्रेकियल आर्टरी को बेसिलिक वेन से जोड़ देते हैं, वो आर्म में मिलती है अपर आर्म में। एक और भी तरीका है जो कि परमानेंट एंजियो एक्सिस हम उसको कहते हैं या वेस्कुलर एक्सिस कहते हैं। उसमें वो एक ग्राफ्ट होता है जो कि एक सिंथेटिक मटेरियल है, आर्टिफिशियल जो है वो बनता है मार्केट में। उस मटेरियल को हम कहते हैं PTFE यानी पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। उसका ग्राफ्ट बना हुआ होता है, वो एक तरह से यूँ समझे कि आर्टिफिशियल आपका फिस्टुला होता है। वो हम उसको हम जो है आर्टरी और वेन के साथ जो कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और ये उन मरीज़ों में इस्तेमाल होता है जिनमें वेन्स और आर्टरी जो हैं वो किसी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाती और पेशेंट या वीक होती हैं, तो इसमें हम फिर ये ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसको ग्राफ्ट को यूज़ करते हैं एज ए एंजियो एक्सिस। तो ये जो एवी फिस्टुला है और सिंथेटिक एवी फिस्टुला यानी ग्राफ्ट है, ये परमानेंट वेस्कुलर एक्सिस है, ये दोनों हमारे पास नहीं होते। जो टेम्परेरी एंजियो एक्सिस है वो कहलाता, उसमें हम क्या करते हैं कि एक कैथेटर होता है, डबल ल्यूमेन कैथेटर हम उसको कहते हैं, ये हमारे पास होता है। इसके अंदर दो ल्यूमेन होती हैं, एक से हम जो ब्लड है वो निकालते हैं, और फिर साफ शुदा जो ब्लड है वो दूसरे जो ल्यूमेन है उससे हम वापस बॉडी में एंटर कर देते हैं ब्लड को।
और ये डबल ल्यूमेन कैथेटर कहाँ पड़ता है? इट्स लाइक ए कैन्युला। कैन्युला देखा होगा आप लोगों ने, उसकी तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा होता है और उसकी ल्यूमेन 2 होती है। और ये जो मेजर जो हमारी वेन है बॉडी में, उसमें डलता है, लाइक फीमोरल वेन, सबक्लेवियन वेन या इंटरनल जुगुलर वेन, इनमें ये पड़ता है, डलता है। और ये हमारे पास होता है टेम्परेरी जो एक्सेस है वो होता है, परमानेंट एक्सेस हमारे पास नहीं होता। ये है टेम्परेरी जो हमने अभी डिस्कस किया, डबल ल्यूमेन कैथेटर। आप इसमें नज़र डालेंगे तो आपको 2 लाइनें नज़र आएंगी, एक जिसका कलर है रेड और एक जो है वो उसका कलर है ब्लू। तो रेड वाले पोर्ट से जो है, लाइन से जो है, ल्यूमेन से हम ब्लड निकालते हैं। फिर अभी हमने जो देखा था पूरा एक प्रोसेस है जिससे डायलिसिस होती है। उसके फिर डायलिसिस के बाद जो क्लीन ब्लड होता है वो हम ब्लू वाले पोर्ट लाइन से, ल्यूमेन से, फिर अंदर एंटर बॉडी में वापस कर देते हैं। और अगर आप साइट देखना चाहते हैं ये कहाँ पड़ी है, तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में है। ठीक है, ये हमारे पास होती है और हम ये करते हैं टेम्परेरी एंजियो एक्सेस। ये फिस्टुला है, ये आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा लाइव, अगर आप होते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल कोशिश करते हैं। ये आपको प्रोमिनेंट वेन्स नज़र आ रही हैं और एक वेन में आपको छोटे छोटे मार्क्स नज़र आ रहे होते हैं जिसके जो कि नीडल पंक्चर के होते हैं। तो रिस्ट की तरफ जो हम देख रहे हैं पंक्चर्स, वहाँ से हम नीडल डाल के ब्लड निकालते हैं। और ऊपर जो एल्बो की तरफ आप पंक्चर मार्क्स देख रहे हैं रेडिश रेडिश छोटे छोटे, वो रिटर्न होता है वहाँ से ब्लड जब डायलिसिस के प्रोसेस से गुजर आए। ये है वो नीडल, जो हम रिस्ट की तरफ से नीडल है उसके ज़रिए ब्लड निकालते हैं। और फिर पूरे जो प्रोसेस डायलिसिस का है उसके ज़रिए, उसके बाद जो है जो साफ़ या क्लीन ब्लड है वो हम जो ऊपर इसके लगी हुई है, जो एल्बो की तरफ लगी हुई है नीडल, वहाँ से हम रिटर्न करते हैं, यानी वापस सिस्टम में सर्कुलेशन में डाल देते हैं, क्लीन शुदा ब्लड आफ्टर डायलिसिस। यह है पेरिटोनियल डायलिसिस का तरीका। पेरिटोनियल डायलिसिस हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन आपको हम एक ज़रा सा ओवरव्यू देते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होती कैसे है। तो उसके लिए जो हम जो पेरिटोनियल कैविटी है, जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा बड़ी कैविटी है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायलिसिस। एक 2 पार्ट होते हैं पेरिटोनियल कैविटी के, एक पैराइटल पेरिटोनियम होता है और एक विसरल पेरिटोनियम होता है। तो पैराइटल के ज़रिए हम पेरिटोनियम में हम एक कैथेटर लगाते हैं, आपको कैथेटर नाम नज़र आएगा, वो कैथेटर लगाते हैं। फिर जो विसरल पेरिटोनियम है जिसके अंदर छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, वहाँ से फिर हम एक्सचेंज करते हैं ब्लड का, उसके साथ इंटरेक्शन होता है डायलिसिस फ्लूइड का, और फिर वहाँ पे एक्सचेंज होती है ब्लड से, उस वेसल से जो वेस्ट प्रोडक्ट से वो डायलिसिस में आता है। और फिर हम उसको एक प्रोसेस करते हैं लाइक डायलिसिस। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी इज़ यूज्ड एज ए डायलाइज़र। जैसे वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी थी ना डायलाइज़र, यहाँ पे हम पेरिटोनियम को यूज़ करते हैं एज ए डायलाइज़र, जहाँ पे ये एक्सचेंज होता है। हम कैथेटर डालते हैं, कैथेटर डालने के बाद फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं 2 ट्यूब से। एक ट्यूब जो है वो, उससे जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इन होता है। ठीक है, आप ऊपर देखें तो डायलिसिस आपको नज़र आएगा, 1 नंबर पे इन नज़र आएगा, इन होता है, यानी कि जो ऊपर बैग लगा हुआ है उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड प्रिपेयर्ड आता है, वो हम पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं। एरो को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको ये एरो नज़र आएगा। यहाँ से हम पेशेंट को फ्लूइड अंदर डाल देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बैग में जो 1 लीटर या 1.5 लीटर या 2 लीटर जितना भी फ्लूइड होता है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए अपनी पेरिटोनियम में, वो डाल देते हैं। वो जब डालने के बाद फिर हम इसको ऊपर वाले बैग को बंद कर देते हैं ताकि मज़ीद फ्लूइड जो है वो अंदर ना जा सके। फिर हम क्या करते हैं कि इस जो फ्लूइड है जो कि अंदर पेरिटोनियल कैविटी में चला गया है उसको छोड़ देते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने भी हमें हमारे लिए फ़ीज़ेबल हो उतना हम छोड़ देते हैं, ताकि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज सही तरीके से हो और
फ्लूइड जो है वो हमारे उसमें से बॉडी में से निकल आए। जितनी देर ये फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है, यानी 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, उसको हम कहते हैं डुवेल। तो पे आप 2 नंबर पे देखेंगे वो उसमें नजर आएगा डुवेल। व्हाट इज डुवेल? द टाइम ड्यूरेशन in which the dialysate fluid remain inside the peritoneal cavity is called duvel। ठीक है, चलेगी। तो 1-2 घंटे में ये जब प्रोसेस हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, फ्लूइड रिमूवल हो जाए, सब चीज़ें हो जाएं, फिर हम क्या करते हैं, जो नीचे बैग पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं ना, आउट लिखा होता है वहाँ पे, वहाँ से फिर हम उस फ्लूइड को निकाल देते हैं जो कि वेस्ट फ्लूइड होता है, और वहाँ उस बैग से हम उस जो जो डर्टी डायलिसेट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। पूरा बैग जब भर जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी खाली हो जाएगी, तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा इन करते हैं नया फ्लूइड डाल के, और फिर वही प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। पेरिटोनियल कैविटी में 1-2 लीटर फ्लूइड डाल के फिर हम उसको छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद दोबारा हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है, आप खुद भी कर सकते हैं घर पे। सिर्फ ये कैथेटर लगाना होता है, वो लगा के फिर हम आपको ये पेशेंट को ये समझा देते हैं। अगर समझा दें तो ये सारा प्रोसीजर वो को घर पे खुद भी कर सकता है, क्योंकि ये 24 आवर चलता रहता है। ठीक है, तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस का कहते हैं। इसके 3 फेज़ हैं। नंबर 1 इन्फ्यूज़ करते हैं पीडी सॉल्यूशन पेरिटोनियल कैविटी में, फिर टुवेल, यानी कि जितने टाइम जो है ड्यूरेशन, जितनी देर में वो पेरिटोनियल फ्लूइड पेरिटोनियम में रहेगा, फिर जब एक्सचेंज हो जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर नंबर 3 फेज़ है उसको ड्रेन करने का। तो ये तमाम प्रोसीजर है, ये हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हमने चूँकि किया है, जहाँ हमने ट्रेनिंग की है, तो मुझे इसलिए याद भी है। मैंने कहा कि आपको आइडिया दे दूँ कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस होती क्या है। ठीक है, अच्छा, कुछ एडवांटेज, ज़ाहिर है हर प्रोसीजर, हर ट्रीटमेंट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हेमोडायलिसिस के एडवांटेज क्या है कि आपने पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी कि आप फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे आके डायलिसिस करानी है। उसमें पेशेंट अपने आता है घर से और डायलिसिस कराता है। 3 घंटे 4 घंटे का सेशन होता है और उसके बाद वो पेशेंट घर चला जाता है। और ये हफ्ते में जो रिकमेंडेड है वो 3 दफ़ा डायलिसिस करनी होती है। हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा रश है, तो हम इसके लिए हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस का अमूमन करते हैं पेशेंट को। और उसमें एडवांटेज एक और भी ये है कि इसमें जो रिमूवल होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के और साल्ट की करेक्शन के और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो निकलता है, वो बहुत एफिशिएंट होता है, जो कि मशीन के ज़रिए होता है। इसलिए रिमूवल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स की अच्छी होती है कंपेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें लिए आपको हर जगह ये नहीं होती, आपको स्पेशलाइज्ड सेंटर चाहिए होते हैं और उसके लिए मशीन्स चाहिए होती हैं और आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है इस डायलिसिस के लिए, और वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज ये है। फिर हम डायलिसिस में चूँकि हम ब्लड बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो सर्किट में जो ब्लड को क्लॉट से बचाने के लिए हम उसको हेपरनाइजेशन देते हैं। और फिर यही हेपरन जो है वो बॉडी के अंदर भी जाती है जब क्लीन ब्लड अंदर जाता है, और बाज़ औक़ात ये ब्लीडिंग करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है। अच्छा, डायलिसिस में एक डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोटीन भी लॉस करती है। पेशेंट के वेस्ट प्रोडक्ट तो रिमूव करती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन को भी अपने साथ ले जाती है, और इसकी वजह से पेशेंट को जो डायलिसिस होते हैं वो वीक होते हैं काफ़ी। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि पेशेंट का प्रोटीन भी लॉस होता है इन हीमोडायलिसिस। ठीक है, अच्छा, पेरिटोनियल डायलिसिस में एडवांटेज ये है कि आपने पेरिटोनियल कैथेटर लगा दिया, फिर आपने पेशेंट को समझा दिया, उसको बैग दे दिए, वो बैग लेके ख़रीद के ये सारा प्रोसीजर जो अभी हमने डिस्कस किया था वो ख़ुद भी घर पे कर सकता है 24 घंटे में ना। उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसको स्टक नहीं होना पड़ता है किसी सेंटर में। वो अपने उसने जो है पेरिटोनियल फ्लूइड पेरिटोनियल में डाल दिया, अब उसको पता है कि ये 1-2 घंटे रहेगा, इसमें वो अपने दूसरे जो काम है वो निपटा सकता है रूटीन के। और फिर जब 1-2 घंटे के बाद उसका
टाइम हो जाता है तो फिर वो घर आके उसको डिस्कार्ड करके फिर नया फ्लूइड डालता है, फिर 1-2 घंटे के लिए वो फ्री होता है और कोई भी अपना काम कर सकता है। और इसमें हेपरिन की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ब्लड निकलता ही नहीं है पेरिटोनियम में डायलिसिस में, तो ये उसका एडवांटेज है। और प्रॉब्लम ये है कि वो सारा दिन चलती रहती है, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है, अराउंड द क्लॉक 24 आवर ये चलता रहता है प्रोसेस, क्योंकि उसमें जो है जो डिफ्यूजन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल इतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी जो है वो डायलिसिस में होती है, हीमोडायलिसिस में होती है। इसलिए ये एक थका देने वाला प्रोसीजर है और मुसलसल करना पड़ता है इस पेरिटोनियल डायलिसिस को। उसमें एक बड़ा ख़तरा ये होता है कि पेशेंट का जो कैथेटर है डायलिसिस का वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है होता है और वो मुसलसल एक्सपोज्ड होता है आउटसाइड बॉडी के, तो उसमें फिर ख़तरा ये होता है कि उस पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस और कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनियल डायलिसिस की। अच्छा, मे कॉज डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होता ये है कि जब पेरिटोनियल फ्लूइड डायलिसिस जो फ्लूइड है वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में अंदर होगा, तो ज़ाहिर है पेशेंट का जो पेरिटोनियम है वो फुल होगा और उसको बाज़ औक़ात डिफ़िकल्टी है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर पुश होता है इस फ्लूइड की वजह से, तो उसको बाज़ औक़ात डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। तो ये इसका जो है वो एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं इन चीज़ों की वजह डिसएडवांटेज की वजह से जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर नहीं करते। तो ये हैं डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो वी हैव फिनिश्ड, जस्ट ये थोड़ी स्लाइडें रह गई थी। Now the question answering session, I will appreciate if you have any question। मैं 1 मिनट ज़रा इनसे अनम्यूट करा दूँ तो फिर आपके क्वेश्चन सुनता हूँ। भाईजान हेलो भाई, नहीं अनम्यूट के। आवाज़ आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछें।